জগদ্দল বুড়িবরতলা এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো বিজেপির চায় পে চর্চা কর্মসূচি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির জনসম্পর্ক বাড়াতে বিজেপির তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে চায় পে চর্চা কর্মসূচি। এই কর্মসূচি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিধানসভায় এলাকায় করছেন বিজেপির কর্মী ও সমর্থকেরা। সেই অনুযায়ী আজ জগদ্দল বিধানসভা অন্তর্গত ভাটপাড়া পৌরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হলো বিজেপির চায় পে চর্চা এই কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভাটপাড়া কেন্দ্রের বিধায়ক পবন সিং, ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির অন্যতম সহ সভাপতি অরুণ ব্রহ্ম সহ বিজেপির নেতা ও কর্মীরা। দেখুক যে সে যা অন্যায় করেছিল তার ফল এখানে সে ভোগ করে যেতে পারছে। তাই আমরা ভাববো যে আগামী দিনে মমতা ব্যানার্জিকে এবং তার যারা পরিষদবর্গ আছেন, তার যারা গুন্ডা বাহিনী আছেন, এই এলাকায় জানি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের সাধারণ মানুষের উপরে যারা গুন্ডামি করেন, যারা বোমাবাজি করেন, যারা দিনে কোমরে রিভলভার গুঁজে নিয়ে অন্য আমাদের কার্যকর্তাদের ভয় দেখান, তাদের আমরা কিন্তু সকলেই চিনি। আর আমি তো আবার ব্যারাকপুর কোর্টে ওকালতি করি, দীর্ঘ ৩২ বছর ওকালতি হয়ে গেল, তাই সকলের নামে কিন্তু ছোটখাটো করে আমার খাতায় লেখা আছে, তাই সেগুলো ভুলে যাব বলে মনে হয় না। তাই যে কথাই যাচ্ছিলাম যে যতই বলুন একটা কথা কিন্তু ভাবতে হবে যে বাংলার উন্নয়ন করবার জন্য আপনি এসেছিলেন, আপনি কলকাতাকে লন্ডন করবার জন্য এসেছিলেন, আজকে কি করতে পেরেছেন মমতা ব্যানার্জি? একবার উত্তর চাইবেন না তৃণমূল কংগ্রেসের বন্ধুদের কাছে? একবার উত্তর চাইবেন না মমতা ব্যানার্জির কাছে? মমতা ব্যানার্জি যে আমি ভারতীয় সংবিধান মানব না, আমি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে মানব না, এমন একটি দল খুঁজে পাবেন না যে নাকি বলে যে আমি ক্ষমতায় আসলে এমন এমন কাজ করব যেগুলো আমার দেশের মানুষের বিপক্ষে যাবে। কেউ বলে না। কিন্তু যেটা বললাম প্রথমে, যা বলা হয় তা করা হয় না। তার একটা দৃষ্টান্ত আছে কলকাতার বুকে দেখলাম। নির্বাচন আসছে, সে নির্বাচনের সামনে আজকে কলকাতাতে একটা নতুন জোট হয়েছে, সংযুক্ত মোর্চা। সংযুক্ত মোর্চা ইংরেজিতে বললে দাঁড়াবে ইউনাইটেড ফ্রন্ট। এলাকা একটা ছিল লেফট ফ্রন্ট, আমরা জানি। সে লেফট ফ্রন্টের সঙ্গে যে লেফট ফ্রন্ট যে দলের বিরুদ্ধে তৈরি হয়েছিল ৭৭ সালে, সেই দল হচ্ছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। সেই কংগ্রেসকে ডান হাতে রেখে আর একটা নতুন তৈরি হওয়া দল, তার নাম দেওয়া হচ্ছে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট। তা বামপন্থী চিন্তাধারা, আমার চিন্তাধারা পুরো বিপরীত। কিন্তু এই কথা কেন বললাম? বামপন্থী, ডানপন্থী, মধ্যপন্থী, যে পন্থী বলুন না কেন, আমরা বলি মানুষের জন্য রাজনীতি করি। আরে ভাবুন তো, আজ কোন মানুষের জন্য রাজনীতি? যে কংগ্রেস নাকি এমন অত্যাচার করেছিল, যে কংগ্রেস নাকি ৭০-এ সন্ত্রাস করেছিল, যে কংগ্রেস নাকি জমিদারদের দালাল ছিল, যে কংগ্রেস নাকি মায়েদের সম্মানহানি করেছিল, যে কংগ্রেস নাকি বোনেদের সম্মানহানি করেছিল, যে কংগ্রেস নাকি কমিউনিস্টদের হাত কেটে নিয়েছিল, সেই কংগ্রেসকে হারাবার জন্য এই বামপন্থীরা বাংলার দেয়ালে দেয়ালে ইন্দিরা গান্ধীর ছবি এঁকে বলতেন ইনি হচ্ছেন ডাকিনী যোগিনী। এই ইন্দিরা গান্ধীর কাটা হাত ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও, কালো হাত ভেঙে দাও जा रहा है। और अगर हम कुछ बातें उठाते हैं, कोई भी पार्टी अगर अपनी बातें रखती है तो उसको या तो उसकी बातों को दबा दिया जाता है या तो उनको गलत केस में फंसा दिया जाता है। ऐसी तरह की राजनीति हो रही है यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल में। तो आप सभी लोग इस चीज को समझें और जल्द से जल्द इस चीज को कैसे ठीक करना, आने वाला समय चुनाव का आने वाला है और आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोगों को क्या करनी है। अगर आज आप लोग नहीं इस चीज को प्रतिवाद करते हैं इस चीज पे, तो फिर हम क्या, आप किसी को भी विधायक बना दीजिए, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब से मैं विधायक बना हूँ, मैं हमेशा कोशिश में यही करता हूँ कि मैं कैसे अपने लोगों की सेवा करूँ, कैसे उनकी मदद करूँ। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि हम लोग जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमारा जो भी है, जो भी एक विधायक को जो भी एक पावर मिलता है जिसको अपने लोगों के लिए कुछ कर सके, उसको कहीं ना कहीं उसको दबाया जाता है, उसको काम करने दिया नहीं जाता है। उनको लोगों को अगर हेल्प करना चाहता है तो वो भी उसको किया नहीं देने। आपने जो वक्तव्य रखा था यहाँ पे बेरोजगारी है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, तो 2021 में अगर बीजेपी यहाँ पे आएगा तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम यही चाहते हैं कि 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी सरकार, इसलिए क्योंकि आपने देखा है जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भी राज्य में, वहाँ डेवलपमेंट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर डेवलपमेंट हो रही है।
बहुत तेज़ी से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जितना होनी चाहिए उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम यही उम्मीद लगा के रहे हैं कि हमारे राज्य में भी अगर ये हमारी भारतीय जनता पार्टी आती है तो हमें भी मौका मिलेगा और काम करने में। एक और रीज़न है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सेंट्रल में है, और राज्य में अगर आती है तो कहीं ना कहीं सेंट्रल से भी हमें बहुत सारा जो स्कीम जो प्रोवाइडेड है वो हमारे राज्य में आराम से इजीली उसको हम लोग अवेलेबल करा सकते हैं अपने लोगों के लिए। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम लोगों को खुले मन से और बहुत तरह से हम लोग उनकी सहायता कर सकेंगे। यहाँ का तृणमूल का कहना है कि महंगाई, जो पेट्रोल डीजल गैस का जो महंगाई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, इसके लिए परेशान है सब। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लोगों को हर तरह से मतलब गलत तरह से उनको मैसेज दिया जाता है। आपको पता है पेट्रोल और डीजल की जो और गैस की जो होती है ना, सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होती है, वो एक इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड होती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट पर प्राइस बढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी प्राइस बढ़ेगा। हाँ, कुछ ऐसा रीज़न है कि आप जानते हैं कि जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि ये बहुत महंगा हो रहा है, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ % टैक्स लेती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है। अगर मैं चाहूँगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट वो परसेंटेज जो टैक्स परसेंटेज है वो कम कर दें तो ऐसे ऑटोमेटिकली वो प्राइस गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो वो चीज़ में अगर इतनी चिंता करती है लोगों की कि प्राइस बढ़ रहा है तो अपने टैक्स को कम कर दे, आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी। और जो आप लोगों के लिए इतना मतलब प्रतिवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके जो बोल रहे हैं कि प्राइस बढ़ रहा, ऐसे तो हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, तो बहुत चीज़ों में आपका रोक क्यों नहीं है? सिर्फ जो चीज़ें आप जानते हैं कि नेशनल के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो चीज़ें अवेलेबल कराई जाती है उसी चीज़ पे आपकी मांग क्यों बढ़ रही है? तो मैं यही बोलूँगा कि एक किसी ना किसी तरह से देखिए, आज नहीं तो कल पेट्रोल और डीजल की दाम नीचे चली जाएगी। जब इंटरनेशनल मार्केट जब नीचे जाएगी, डिक्रीज़ होगी, तो यहाँ की भी मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन बाकी चीज़ों में जो डेवलपमेंट को लेकर वो क्यों नहीं बात करते हैं? आजकल देख रहे हैं आए दिन जो हमारे जूट मिल की जो हालत हो रही है, दिन पे दिन और बुरी हालत हो रही है। मुझे लगता है कि आए दिन में उनका इंटेंशन है कि जूट मिल बंद ही हो जाए। आए दिन जो बाकी इंडस्ट्रियाँ है, कोई नई इंडस्ट्री यहाँ आ नहीं रही है, पुरानी इंडस्ट्री दिन पे दिन बंद होती जा रही है, तो उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ वो चीज़ों पे बात। देखिए, आज अगर इंडस्ट्री आएगी, लोग की इनकम ज़्यादा होगी, तो कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़े हमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री मेन है, प्राइस तो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डे बाय डे हमारे बच्चे भी जब होंगे, बड़े होंगे, तो उस टाइम आप देखिएगा जो आज पेट्रोल की दाम 100 रुपये है, कल 200 होगी, तो वो तो कम नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट की जो प्राइस है वो बढ़ेगी, इंटरनेशनल मार्केट, तो हमारी भी प्राइस बढ़ेगी। लेकिन हमको यहाँ के लोगों के लिए जॉब देना पड़ेगा, यहाँ के लोगों के लिए इंडस्ट्री प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री में काम मिले, उनको इनकम अच्छा हो। तो आप देखिएगा, इनकम जब अच्छा होगा, जो आज 10,000 कमा रहा है कल 20,000 कमाएगा, तो उसको 100 रुपये का पेट्रोल और 1000 रुपये का गैस के लिए उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि उस चीज़ों पे ध्यान दे अगर यहाँ की सरकार, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं 2021 में? देखिए, उम्मीद हम लोग यही कर रहे हैं कि हमारे जो यहाँ की जनता है कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो चुकी है यहाँ जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, और वो भी चाहती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और फेयर इलेक्शन हो, कि लोग अपना मतदान दे पाए और सही जगह पे मतदान दे पाए। धन्यवाद।